Here's how you can make the most of your first year at college. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. If you're watching my videos for the first time, I'm a second year student of BCom Honors at SRCC Delhi University, and this has been one of the highly requested videos. I know you guys, the batch of 2022, are very excited to come to college, and I am excited to meet you guys as well. And in this video, I will be sharing what you should do in the first year of your college to make the most of it. इनमें से काफी सारी चीजें मैंने करी हैं, कुछ नहीं भी करी हैं, but I don't want you guys to miss out on anything. तो इस वीडियो में मैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स भी शेयर कर रही हूँ. I asked people on my Instagram to share their advice for first year students, and this video is a summary of what everyone had to say. So without further ado, let's get right into the video. Okay, तो सबसे पहले before I delve into all the fun stuff, let's talk about studies at college. I know हम सब यही expectation लेके आते हैं कि college life बहुत chill होगी, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मजे करने हैं. But don't be mistaken, please तुम college में आ रहे हो तो पढ़ाई मत भूलना. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन था तो चल गया, एंड सेकंड सेमेस्टर में ऑल ऑफ अस लिटरली रिग्रेट नॉट स्टडिंग बिफोरहैंड, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में जो प्रेशर एंड स्ट्रेस होता है, इट्स जस्ट नॉट फन एट ऑल. इससे अच्छा अगर तुम लिटरली सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ोगे रोज कंसिस्टेंटली, यू विल बी सॉर्टेड, एंड लास्ट में तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी एग्जाम्स की. लास्ट में आते आते इतना स्ट्रेस होता है, देन वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो कोई पढ़ाई हो नहीं पाती है. तो इससे अच्छा तुम अगर कंसिस्टेंटली पहले से पढ़ोगे एंड थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो it will be much better. And trust me on this, do not make the mistake of completely giving up your studies. That is equally important. Now that being said, the second thing is to explore as much as you can. अब finally college में आके time बहुत होता है, and there are so many different things that you get to try, and I think first year is the perfect time to explore all the domains you've ever wanted to try. तुम dramatics में जा सकते हो, you can sing, you can dance, you can go into marketing fields, you can try out consulting, you can do so many things. Options are endless. And क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया होने वाला है, so don't stress out कि तुम्हें ये नहीं आता या वो नहीं आता. सब कुछ देखो and सब कुछ try करो. Participate in different types of competitions. It's okay even if you don't know क्या करना होता है, but that's where you'll get to learn, right? बिल्कुल hesitate मत करना कुछ भी नया try करने के लिए. It doesn't matter तुमने पहले स्कूल लाइफ में करा है या नहीं करा है. College is a completely different game altogether. तुम्हें जो करना है तुम यहाँ पे कर सकते हो, and you can try and experiment with absolutely anything and everything. But that being said, तुम्हारे आसपास तुम देखोगे लोगों को पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे. कोई दुनिया की सारी चीजें कर रहा होगा, कोई सिर्फ शायद पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा. But always remember, at the end of the day, focus on what you want to do. Just because your friends are doing internships, they are participating in all these different competitions, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भी करना है. तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, whatever sails your boat, you should go ahead and do that. Do not care about what other people are doing. FOMO, that is the fear of missing out in college, is real. कॉलेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तुम्हें लगता है उन्होंने पहले 2 महीने में इतना अचीव कर लिया है, बट दैट डजंट मीन दैट योर कॉलेज एक्सपीरियंस इज नॉट इनफ. तो जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारी कैपेबिलिटीज है, उस पे फोकस करो. अपनी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से मत कंपेयर करना. जस्ट डू योर ओन थिंग. नाउ द मोस्ट फन पार्ट अबाउट कॉलेज इज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड मीटिंग सो मेनी डिफरेंट पीपल. फाइनली कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम्हें दुनिया भर के अलग अलग लोग मिलते हैं, एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर बबल ऑफ द पीपल हु लिव अराउंड यू. अब तुम्हें सारे स्टेट्स एंड प्लेसेस के लोग मिलेंगे with so much diversity, with so many different perspectives, but that is exactly what you need for your growth and building a personality. And काफी लोग पूछते भी है कि how do you make friends in college? So don't worry, first of all, everyone is on the same page as you. सबको नए दोस्त बनाने हैं, so do not wait for anyone to approach you. तुम सामने से जाके लोगों को टेक्स्ट करो and just start interacting with them randomly. Same college है, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो. Once you start getting admission in colleges, अपने आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा. स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल वाया इंस्टाग्राम. यूजुअली लोगों के बायो में लिखा होता है कौन से कॉलेज से हैं वो. एंड अदरवाइज इफ यू स्टिल कांट फिगर आउट, देन लिंक्डइन इज द प्लेस टू गो. सब लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट टेक्सटिंग देम एंड स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल. वेट मत करो कब किसका टेक्स्ट आएगा, तुम सामने से लोगों से बात करो. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू जॉइन अ कॉलेज एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इज सोसाइटीज. जो हाइप सोसाइटीज का कॉलेज
कॉलेजेस में बना रखा है इज ऑलमोस्ट इनसेन। स्पेशली एसआरसीसी में मैंने जो हाइप देखा है सोसाइटीज का, ओ माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट टू मच एट दिस पॉइंट। बट दैट बीइंग सेड, सोसाइटीज इज ऑल्सो अ ग्रेट way to meet new people and get exposure. You get to learn so many new skills. You can interact with your seniors also via societies. And overall, it's just a fun experience. The biggest mistake students make in their first year when it comes to societies is that तुम दुनिया भर की सारी societies में apply कर देते हो, and that is not okay. Trust me, I have been there and I will never recommend that to anyone. Choose your top 2-3 societies जो तुम्हें genuinely अच्छी लगती है, या जिसका काम अच्छा लगता है, या जिसका domain अच्छा लगता है, and सिर्फ उनमें apply करो. Just because other people are applying to 10,000 societies, you do not have to do that. It's more important to enjoy the process rather than it feeling like a burden कि भाई कितना काम करना है, because society के processes बहुत extensive होते हैं. You have to fill a form, you give GDs, interviews, ऐसे proper recruitment process होता है which takes a lot of time. So इसलिए जितनी कम societies में apply करोगे उतना better होगा. And तुम्हारा तो offline setup होने वाला है. Offline में you cannot manage so many societies. हमारा ऑनलाइन था तो फिर भी हमने 3-4-5 सोसाइटीज मैनेज कर ली थी, लेकिन ऑफलाइन में इट विल गेट वेरी टफ. इससे अच्छा जस्ट चूज योर टॉप 3 सोसाइटीज एंड उनमें अपना बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि इतनी सारी सोसाइटीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है. नाउ इस सब के साथ कॉलेज में अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना, टू मेक योर सेल्फ एज अ पर्सन ग्रो, टू लर्न न्यू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. स्पेशली अभी तो कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ है, काफी फ्री टाइम है. अगर तुम्हारा CUET हो चुका है, so you should focus on learning new things. And by skills I mean, for example, you can improve your technical skills. You learn how to use Canva, learn how to use Photoshop, learn how to edit videos. You can learn how to use Excel. Excel is a very big skill. You can improve your communication skills. You can start reading more. You can learn about entrepreneurship and startups and all of that stuff. It's also a good idea to experiment and learn new things. At least try करके देखो, understand what entrepreneurship is. Is it something you like? If it's not, then भूल जाओ, but at least तुमने try करा, क्योंकि college is all about exploring, right? So learn new and different kinds of skills. Of course it will benefit you. तुम अपने CV में लिख सकते हो. तुम जब society के recruitment process में आओगे, if you have some skills, that's always a plus, right? So make sure you're utilizing your time right now well. Now another fun thing to do is exploring the city you've moved out to. अगर तुम कोई और state से आ रहे हो college में पढ़ने के लिए, या honestly मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैंने कोई बहुत सारा दिल्ली तो नहीं देखा है अभी तक. So I think college में इतना free time होता है, you have new friends, and तुम्हें college के बाद chill करना होता है. So you might as well explore where you're living, right? जाके नई जगह घूमो, नए cafes try करो. अगर तुम North Campus आ रहे हो तो Hudson Lane explore करो, वहाँ पे literally इतने सारे cafes हैं. Make spontaneous plans with your friends to go out. If you're allowed to go for trips, please go for trips. That's literally the best thing ever. And इसमें सबसे important तो fests हैं. You know, college में इतने सारे fests organize होते हैं. Literally end of the year एक पूरा fest season होता है जहाँ पे हर college में fest लग रहा होता है. So go and explore those fests. इतने मस्त आर्टिस्ट आए होते हैं, इतना मजा आता है इन सब चीजों में. अनफॉर्चुनेटली हमारा सब ऑनलाइन हुआ था तो बहुत ज्यादा फेस्ट नहीं हुए हैं, बट जो भी एक आधा फेस्ट अटेंड किया है मजा तो आता है. सो मेक श्योर यू ऑल्सो डू दैट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू हैव अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल. अब काफी लोगों के पास शायद ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, बट इफ नॉट, अब कॉलेज में आ गए हो, इट्स टाइम टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड गेट आउट ऑफ इंस्टाग्राम एंड मूव ऑन टू लिंक्डइन. अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म विच इज मोर फॉर्मल. इसमें तुम अपनी अचीवमेंट्स एंड skills mention करते हो. You can get internships through LinkedIn. You can connect with different corporate companies and their employees, and all of that kind of stuff happens on LinkedIn. And actually it's very simple to make a LinkedIn profile. Just sign in करो and अपनी details डाल दो and you will be good to go. And then वहीं से तुम अपने college के या दूसरे colleges के लोगों से interact कर सकते हो. Now the next thing, and this is also why you should have a LinkedIn profile, is doing internships. So usually people do find internships via LinkedIn, क्योंकि काफी companies अपने internship offers के बारे में LinkedIn पे डालती है, and then you can apply to them and all of that stuff. Now I did not do an internship in my first year because I feel like it gets too much. And अगर तुम्हें मिल रही अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप करने की तो go ahead, but जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ फर्स्ट ईयर में ही करना है. Now if you are doing internships, obviously तुम्हें अपनी CV में वो लिखनी है, so तुम अपने CV perspective से internships करो, the things that would actually look good on them, the internships that are actually worth your time as well. CV के चक्कर में कुछ भी मत करने लग जाना कॉलेज में. This is a very big problem people face, and I personally believe that please make a distinction between good internships and कोई भी टाइप की internships. And नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, focus on doing other things, focus on building new skills. I think वो ज्यादा अच्छा लगेगा instead of doing random internships. Now that I've told you क्या क्या करना होता है कॉलेज में, तुम्हें बहुत
बहुत ज्यादा लग रहा होगा, सोसाइटीज भी, पढ़ाई भी, इंटर्नशिप्स भी, मजे भी करने, बाहर भी घूमना है, देयर इज सो मच टू डू एंड दैट्स द रीजन देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज इन योर कॉलेज लाइफ, दैट इज टाइम एंड मनी, क्योंकि दोनों की कमी होने वाली है कॉलेज में. नाउ व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग मनी, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम. यू ऑल आर अडल्ट्स, यू ऑल आर गोइंग टू लिव योर लाइफ योर ओन वे, तो पैसे को हैंडल करना आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू बजट. आई हैव सीन काफी लोगों को मंथली या वीकली पैसे मिलते हैं, सो इट्स अ गुड आइडिया इफ यू कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी, सो यू विल बी मोर माइंडफुल ऑफ वेयर इट्स गोइंग एंड तुम कहीं भी उड़ा के नहीं आ जाओगे. एंड अनदर वेरी प्रेशियस थिंग इज टाइम, बिकॉज टाइम वंस गोज नेवर कम्स बैक. फर्स्ट ईयर में तो टाइम ऐसे चला जाता है कि पता ही नहीं लगता क्या किया और क्या क्या हो गया. सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इनफ टाइम टू एवरीथिंग यू वांट टू डू. चाहे सोसाइटीज कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, तुम्हारा अपना कोई खुद का पैशन प्रोजेक्ट या साइड हसल है, या तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना है, सबके लिए टाइम डिवाइड करके रखो एंड ट्राई टू बीट योर प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है कि कर लेंगे और फिर इवेंचुअली कुछ नहीं होता है. ट्रस्ट मी, टाइम तो बहुत है, बट इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज इट इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू सम अप एवरीथिंग आई हैव सेड एंड टू मेक द फर्स्ट ईयर द बेस्ट ईयर ऑफ कॉलेज, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस. ये नहीं कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, या तुम सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो, या सिर्फ बाहर घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ. तुम्हारे आसपास के लोग इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं, तुम्हारे सीनियर्स तुमको बोल रहे होते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. जस्ट चिल एंड रिलैक्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट सो मेनी पीपल टोल्ड मी कि फर्स्ट ईयर में हम बस लगे रहते हैं एंड वी डोंट रिलैक्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट यू टेक वन डे एट अ टाइम एंड यू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. डोंट ट्राई टू रश एवरीथिंग. अभी 3 साल है कॉलेज के, तुम्हें सब कुछ एक साल में करने की जरूरत नहीं है. पहले साल में इंटर्नशिप नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में कर लेना. ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट ईयर में जो किया कर लिया, आप सेकंड ईयर में तो सीधा करियर बनाना है. 3 साल है, करियर भी बन जाएगा, मजे भी हो जाएंगे, दोस्त भी बन जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब हो जाएगा. बट स्ट्रेस मत लो, चिल करो. आई थिंक इनिशियली फॉर मी एज वेल इट वाज सो स्ट्रेसफुल, क्योंकि सोसाइटीज का पूरा हाइप शुरू हो गया था, सब लोग इतनी सारी सोसाइटीज में अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने भी कर दिया था. बट देन आई रिग्रेटेड इट सो मच, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है. सो आराम से तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना करो. दिस ईयर विल नेवर कम बैक. तुम मजे करो यार, जो मर्जी करना है करो. एंड ऑल्सो बिकॉज सो मेनी पीपल मूव आउट ऑफ देयर हाउस टू कंप्लीटली न्यू सिटी, ऐसे अलग से एक फ्रीडम मिल जाती है. तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी फ्रीडम को मिसयूज करो. हैव फन, गो आउट, बट स्टिल नो योर लिमिट्स एंड पीयर प्रेशर में चीजें मत करना. ओके, अब मैंने तुम्हें कॉलेज के बारे में काफी कुछ बता दिया है एंड आई होप नाउ तुम्हारी फर्स्ट ईयर बहुत ही मस्त होगी. आई विश किसी ने मुझे ये एडवाइस दी होती तो मेरी फर्स्ट ईयर इससे भी बेटर होती, बट फिर भी मुझे तो बहुत मजा आया था एंड आई नो तुम्हें भी आएगा. एंड आई होप whatever I spoke in this video was actually helpful to you guys. Comment down below if you would like to see a video on what you should not do in the first year of your college. I have definitely made some mistakes and learned a lot of things, so let me know if you're interested and I'll be happy to make that video. And I think I'm going to end this video here. काफी बातें कर ली है हमने. So if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram and until next time, bye.